وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھیں، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ میں کیا کہتی اور اندر ہی اندر بل کھا کر رہ گئی۔ اسی وقت ہلکی سی آواز ہوئی اور اس کنویں میں دائیں جانب ایک راستہ نمودار ہو گیا۔ چندر موہن اگر مجھ سے ادھر جانے کو نہ بھی کہتا تو میں ضرور جاتی۔ اس اندھے کنویں سے نکلنے کی ایک صورت تو پیدا ہو گئی تھی، اور خنجر اٹھانے کے لیے میں نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ چندر موہن کی آواز ابھری، وعدہ خلافی نہ کر مابلا، اور میں نے تجھ سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا تھا۔ وعدہ نہ سہی، اور میں نے تجھے تاکید کی تھی کہ خنجر ساتھ نہیں لے جائے گی یہاں سے، اور اس وقت تک میں نے خنجر اٹھا لیا تھا، اور پھر خنجر جیسے خود بخود میرے ہاتھ سے نکل کر فضا میں بلند ہوتا گیا۔ اس وقت تک میں نے خنجر اٹھا لیا تھا، اور میں نے اس وقت یہی سوچا تھا کہ جو کام مجھ سے نہیں ہو سکا نثار نے انجام دے دیا، اور میرے نزدیک یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ نثار مجھ سے بے وفائی کر جاتا، اور وہ یقیناً چندر موہن کو فریب دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دائیں جانب جو دروازہ نمودار ہوا وہ کسی سرنگ کا دہانہ لگتا تھا، اور سرنگ میں بھی روشنی تھی، اور اس میں بآسانی سیدھا کھڑا ہو کر چلنا ممکن تھا، اور میں نے اس میں قدم رکھا اور آگے بڑھنے لگی۔ سرنگ کے اختتام پر میری سماعت سے کسی کے ہنسنے کی آواز ٹکرائی، اور کوئی عورت دھیرے سے ہنسی تھی، اور سرنگ کے بعد ایک درباری سی تھی، اور سامنے ہی کسی کمرے کا دروازہ تھا۔ دروازے پر ریشمی پردہ پڑا تھا، اور عورت کے ہنسنے کی آواز اسی کمرے سے آئی تھی، اور پھر جانے کس طرح وہ ریشمی پردہ درمیان سے غائب ہو گیا، اور مجھے کمرے کا منظر نظر آنے لگا۔ پیو نثار، اور پیو یہ جیون رس ہے، اور عورت کی مخمور آواز سنائی دی، اور میں نے دیکھا بلا شبہ وہ ایک حسین عورت تھی، اور یہ جاننے کے باوجود کہ شاید نثار مصلحت کے تحت دانستہ چندر موہن کا اعلیٰ کار بن گیا ہوگا، اور مجھے اس کا حدود سے تجاوز کرنا اچھا نہیں لگا، اور غالباً دنیا کی ہر عورت ہر مرد کے بارے میں میری ہی طرح تنگ نظر ہوتی ہے، اور میرا جی چاہا کہ اس عورت کو گھسیٹ کر نثار سے الگ کر دوں، اور میرے لیے وہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ وہ عورت یقیناً چندر موہن کی کوئی داسی تھی جو نثار کو گویا دل ہی دل میں اتار رہی تھی، اور نثار میری احتجاجی آواز بلند ہوئی۔ وہ کھیل زیادہ فاصلے پر نہیں کھیلا جا رہا تھا، اور جس نے میرے بدن میں آگ سی لگا دی۔ اے مابلا، تو کیوں چیخ رہی ہے؟ اور میں نے چندر موہن کی منحوس آواز سنی، اور ان دونوں تک تیری آواز نہیں پہنچ سکتی، اور وہ ادھر نظر اٹھا بھی لے تو انہیں تو دکھائی نہیں دے گی، اور وہ چندر موہن کا شیطانی طلسم کدا تھا، اور یہ جاننے کے باوجود کہ میں غصے کی حالت میں تیزی سے آگے بڑھی، اور پھر میرا جیسے کسی ندیدہ دیوار سے سر ٹکرا گیا، اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا پھیل گیا۔ پھر جانے کب میں ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آئی، اور آنکھیں کھولتے ہی میری نظر نثار کے چہرے پر پڑی، اور میرا سر اس کے زانوں پر رکھا تھا۔ بے وفا، اور میں بڑبڑائی، اور گزشتہ شب کا منظر میری آنکھوں میں گم گیا، اور اس خیال کے ساتھ ہی میں اٹھ کر بیٹھ گئی، اور نثار کی طرف سے میں نے منہ موڑ لیا۔ کیا ہوا؟ کس بات پر ناراض ہے تو؟ نثار نے میرے شانے پر ہاتھ دھر دیا، اور میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے میں بولی، میرے جسم کو ہاتھ نہ لگا، اور تیرے ہاتھ ناپاک ہو جائیں، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تجھے کیا ہو گیا، اور رات کو تو اتنی مہربان تھی کہ، اور میں یا وہ ذلیل عورت جس کے حصول کی خاطر تو نے ہر عہد توڑ دیا؟ کون عورت؟ تو کس کی بات کر رہی ہے؟ اور خود بخود یہاں ایک راستہ نمودار ہوا، اور تو مجھے ایک سر سے گزار کر اس کمرے میں لے آئی، اور جس کے فرش پر دبیز قالین بچھا تھا، اور پھر میں تجھے روکتا ہی رہا، اور وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا۔ فریب، نظر بندی، اور میرے اعصاب پر چھناکا سا ہوا، اور میں نثار کی طرف مڑی، اور اس کا سر جھکا ہوا تھا، اور چہرے پر خجالت کے آثار تھے۔ میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی، اور خبیث چندر موہن نے مجھے اذیت میں مبتلا کرنے کی خاطر وہ سوانگ رچایا تھا، اور نثار نے ان بقیہ باتوں کی تصدیق میرے نزدیک فضول تھی، اور جو چندر موہن نے مجھ سے کی تھی،
उन बातों का मतलब यही होता कि मुझे नसार पर अब एतमाद नहीं रहा और उसके बावजूद नसार को सूरत हाल से आगाह करना ज़रूरी था। शर्मिंदा ना हो नसार कि तूने मुझ पर दस्तराजी नहीं की, और वो मैं नहीं, चंद्र मोहन की एक दासी थी, और चंद्र मोहन ने तुझे फरेब नज़र में मुब्तला कर दिया था, और फिर मैंने उसे अपने साथ पेश आने वाला वाक़या मुख्तसरन बता दिया, और तूने मेरी रूह का एक बोझ हल्का कर दिया मामला, और मैं खुद को वाकई तेरा मुजरम समझ रहा था। और ये शख्स चंद्र मोहन तो इंतहाई पस्त ज़ेन का लगता है, और मैं समझा नहीं कि उससे भला उसे क्या मिला, और अजीब कमीना आदमी है। वो आदमी नहीं शैतान है। और मेरे लहजे में निहायत हकारत थी, और गहरे कुएं के ऊपर खुला आसमान नजर आ रहा था, और दिन की रोशनी कुएं के अंदर तक पहुंच रही थी, और वो कुआं शायद किसी ऐसी जगह था जहां किसी का गुजर नहीं होता था। कुएं की दीवारें बिल्कुल सपाट थीं, और ऊपर पहुंचने की कोशिश करना कार्य अबसी साबित होता। और दिन की रोशनी में हम दोनों ने उस कुएं का अच्छी तरह जायजा लिया। वहां कोई दरवाज़ा नहीं था, और दीवारें ठोक बजा कर देखें, गर्ज के हर मुमकिन तरीका आजमा कर देखा, लेकिन फरार की कोई राह नहीं थी। सारा दिन भूखे प्यासे गुजर गया और उधर कोई नहीं आया। हमारी नज़रें बार बार ऊपर उठती रहीं, और हैरत तो ये कि कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी, और मालूम नहीं वो कुआं किस जगह था, और सन्नाटा गैर फितरी सा था। और फिर धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा, और गनीमत था कि उस अंधे कुएं में चंद्र मोहन ने मुझे तनहा नहीं रखा था। गुज़श्ता रोज से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया था। हाँ, नसार ने नशा आवर जीवन रस जरूर पिया था। चंद्र मोहन की कैद में एक बार फिर मुझे भी उस मशरूब का तजर्बा हो चुका था, और ये मशरूब आदमी के हवानी जबलत को दो चंद कर देता है, और नसार के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे नज़दीक उससे जो गैर अखलाकी हरकत सरजद हुई, उनकी जिम्मेदारी चंद्र मोहन पर थी। अब चंद्र मोहन की आवाज़ सुनने से भी हम महरूम हो चुके थे, और उस आवाज़ के जरिए चंद्र मोहन से कोई राब्ता तो कायम था, लेकिन अब ये राब्ता भी शायद बरकरार रखने के हक में नहीं था, और वह मुझसे अपने दस्ते रास चंबा के कत्ल का इंतकाम ले रहा था, और नसार को मेरे साथ देने की सज़ा मिल रही थी। और मैं बस सोच रही थी कि उसे अपने साथ ना लाई होती तो बेहतर था। और फिर आसमान पर इक्का दुक्का सितारे नजर आने लगे, और रात हो चुकी थी, और कुएं के अंदर तारीकी फैल गई। तुझे भूख तो लग रही होगी मामला, और नसार ने मुझे मुखातब किया, और कल से तुझे कुछ खाने को नहीं दिया। अरे तूने कब खाया पिया है? मैं भूखा रह सकता हूँ, और बस बार बार तेरा ख्याल आता है नसार। और फिर वही मनहूस आवाज़ कुएं में गूंजी, और जिससे राब्ता मुंतके हो गया था, और चंद्र मोहन की आवाज़ उसी के साथ कुएं में रोशनी हो गई। हाँ बोल ऐ वो शख्स कि जिसे मैंने देखा नहीं और नफरत करता हूँ, शदीद नफरत। और कल रात तो मैं बस यूं ही मामला को तड़पा रहा था कि तूने मुझसे अपनी ज़िंदगी का सौदा कर लिया, और सो ये पेशकश अब कर रहा हूँ कि तू क्यों इसकी खातिर जान दे रहा है। और वैसे भी इसका तलक बुलंद पहाड़ों से नहीं, और ये तुम लोगों में से नहीं है। तो फिर ये कहाँ से पहाड़ों पर पहुँच गई? और नसार ने तलख लहजे में सवाल किया। ए अजनबी, तू मुझे फ्रेब नहीं दे सकता कि माबला को बचपन से जानता हूँ, और अगर मैंने ये साबित कर दिया कि माबला का ताल्लुक पहाड़ी बस्तियों से नहीं, तो क्या ए सरदार आशिर के तू इसकी हमायत से दस्तबरदार हो जाएगा? तू कहीं इस तरह मालून सयान की हमायत तो मुझसे नहीं चाहता। ठीक समझा तू ए नसार, दरअसल वादी सबद पर माबला का नहीं, सयान का हक है। तू बकता है, अपनी बकवास बंद कर। सारे कबैल वादे वादी सबद पर माबला के हक को तस्लीम कर चुके हैं, और इसलिए कि उन्हें हकीकत का इल्म नहीं, और जिस रोज सच ज़ाहिर होगा, कबीले को पता चल गया कि मामला सरदार आशिम की बेटी नहीं, तो उसे तस्लीम करने वाला कोई नहीं होगा। मामला ने कभी इक़्तिदार की हवस नहीं की, उसे तो तमाम कबाइल के सरदारों ने खुद वादी सबज़ का हुक्म बनाया है। तो फिर उसने सयान से किस लिए जंग की? अपने बाबा सरदार आशिम का इंतकाम लेने के लिए। और नसार बिला झिझक जवाब दिए जा रहा था, और मैं खामोश थी, और मसलत का तकाजा भी यही था। इंतकाम? और चंदन मोहन की जहरीली हंसी सुनाई दी, और फिर आवाज़ आई, और सयान से ये एक ऐसे शख्स का इंतकाम लेने के दर पे है कि जिससे इसका कोई ताल्लुक नहीं। तू इन बातों को क्या जाने, ए हमवार मैदानों में रहने वाले? और नसार के लहजे में हकारत थी। अगर मैं ना जानता तो क्या तुझे सरदार आशिर का बेटा कहता? और मैं ही तो एक ऐसा हूं कि जानता हूं। और चंद्र मोहन की आवाज़ से तकब्बर का इजहार होने लगा।
तू शैतानी कुव्वतों का मालिक है, सो इतनी सी बात जान लेने पर इतरा रहा है, और कोई ऐसी बात कर कि जो मेरे लिए अजब हो या मुझे खबर ना हो। मेरे इल्म में ऐसी मुतअद्दिद बातें हैं और मैं तुझे इसी वक्त बता सकता हूँ। हर चंद के माबला को अभी मैं ये बातें नहीं बताना चाहता, लेकिन तू ये यकीन दिला दे कि सयान से जंग नहीं करेगा और वादी सबद पर उसे हुक्मरानी करने देगा। और तुझे हर दुश्मन से क्या हमदर्दी है? नसार बोल उठा, और इस तरह चंद्रमोहन की बात पूरी ना हो सकी, इसलिए कि वो मेरा दोस्त है। और चंद्रमोहन ने जवाब दिया, और अंग्रेज हुकूमत भी सयान को अपना दोस्त समझती है, यही बात है ना? हाँ, इसलिए कि सयान बहरहाल एक रियासत का हुक्मरान है और जिस पर माबला ने तेरी मदद से नाजायज कब्जा कर लिया। और सुन, मैं चाहूं तो माबला के साथ ही तुझे भी रास्ते से हटा दूं, मगर ये इस मसले का हल नहीं। सयान का वली नायब तेरी जगह संभाल लेगा। और फिर मैंने नसार को चौंकते देखा और मुझे यूं लगा जैसे वह तवज्जो से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। क्या सोचने लगा तू? और चंद्रमोहन की आवाज चंद लम्हों के बाद फिर सुनाई दी। ये सोच रहा हूं कि मैं अगर मामला वाकई पहाड़ी बस्तियों से ताल्लुक नहीं रखती और सरदार आशम की औलाद नहीं, तो फिर इसे वादी सबद पर हुक्मरानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन और मामला तो खैर अब कभी पहाड़ों पर वापस नहीं जा सकेगी, और इसलिए कि मसला मामला की हुक्मरानी का नहीं तो फिर और मसला सयान के हक को मानने का है। और अगर मैंने ये बात मान भी ली तो बकिया कबाइल किस तरह मान जाएंगे? नसार ने सवाल किया। मामला के बारे में हकीकत का इल्म होने के बाद वादी सबद पर हुक्मरानी का दावेदारी कौन रह जाएगा? और नसार को तो मैंने इस तरह खामोशी इख्तियार करते देखा जैसे वो लाजवाब हो गया है। तू एक बात और भूल रहा है, ऐ सरदार आशिर के बेटे। पहाड़ी बस्तियों की ज़बानी दस्तूर के मुताबिक मामला यूं तो यूं भी हुक्मरानी की अहल नहीं, और जो शख्स उससे शादी करता वादी सबद की हुक्मरानी उसे मिलती। और तू शायद इसी उम्मीद पर अब तक मामला का साथ देता रहा है। और चंद्रमोहन की आवाज में तंज था। तू मुझे गलत समझा ए अजनबी शख्स, मुझे वादी सबद पर हुक्मरानी का लालच नहीं, और मेरे बाप की मेरास मुझे काफ़ी है। अच्छा, इन बातों को छोड़ और मामला के बारे में बता। और अगर मुझे यकीन आ गया कि मामला पहाड़ों की रहने वाली नहीं, तो फिर कोई भी वादी सबद पर हुक्मरानी करेगा, मैं उसकी मुखालफत नहीं करूँगा। और फिर चंद्रमोहन ने मेरे मादी से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। मेरा तल्लुक जनरल बख्त खान की नस्ल से था, और बरसों पहले मेरे अजदाद पहाड़ों में जा बसे, और उनमें से कुछ किसी तरफ और कुछ मजीद बुलंदियों की तरफ निकल गए कि जालिम अंग्रेज़ों के हत्थे ना चढ़ जाए। और नस्र दल नस्र ये लोग बुलंदियों की तरफ सफ़र करते रहे, और एक बर्फानी तूफान में घिर कर मेरे वालिदैन अपने काफिले वालों से बिछड़ गए। और मेरी उम्र उस वक़्त सिर्फ 1 माह थी। तूफान थमा तो वे इस गाड़ से निकले जहाँ पनाह ली थी, और कुछ दिन तो रास्ता भटक जाने के बाद सामान खुर्दनोश चला, और फिर वो भूख प्यास से नडाल होकर एक जगह गिर गए। उन्हीं दिनों सरदार आशिम अपनी बीवी के हमरा इस रास्ते से गुजरा, और बर्फानी तूफान में गिरकर वो भी रास्ता भूल बैठा, और उसके साथ मुहाफिजों का जो दस्ता था बिछड़ गया। और सरदार आशिम के पास खासा खुश गोशत था, सो वो उसकी बांझ बीवी जिंदा रहे और मेरे वालिदैन को मरने से ना बचा सका। सो यूं मैं सरदार आशिम को कुदरत की तरफ से जैसे तोहफे में मिल गई। और महीनों इधर उधर भटकने के बाद सरदार आशिम तवील अरसे के बाद वादी सबद की तरफ लौटा, और सही रास्ता तलाश कर लाने के बावजूद सरदार आशिम ने दानिस्ता देर लगाई। सरदार आशिम और उसकी बीवी ने रास्ते में तय कर लिया था कि वह मुझे अपनी औलाद ज़ाहिर करेंगे, और उसी के बाद महापुजार ने सरदार आशिम की अम्मा पर मेरे शाने को गोदा, और मेरी शनाख्त के लिए सांप का फन मेरे शाने पर गोदा गया। और यूं मैं वादी सबद में सरदार आशिम की बेटी बनकर परवान चढ़ने लगी। और चंद्रमोहन ने एतराफ़ किया कि उसने अपनी शैतानी कुव्वतों के जरिए मेरे माजी का सुराग लगाया था। लेकिन क्यों, और तुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? नसार ने एक और सवाल किया। जाप करते मुझे एक रोज़ एक अपनी शक्ति से मामला के बारे में पता चला, और चंद्रमोहन बताने लगा। उस अय्यार को मेरे अंदर मौजूद हैरत अंगेज कुव्वतों का इल्म हुआ, और चंद्रमोहन ने सोचा कि मुझे अगर वो अपना मती बना ले तो उसकी कुव्वतें लामहदूद हो जाएंगी। और फिर उसके शैतानी ज़हन में एक मंसूबे ने जन्म लिया। उस पुरअसरार कुव्वतों के बल पर उसने कई आला सरकारी हकाम से रस्म राह पैदा कर ली, और उसी घर से वो दिल्ली गया। और वो विलियम राइट और रॉबर्ट हिम दोनों ही उसके शैतानी चक्कर में आ गए, और उन दोनों अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सी
زیر زمین تنظیمیں سرگرم عمل تھیں اور ولیم اور رابرٹ کا چندر موہن نے یہ سمجھایا کہ اگر میں قابو میں آ گئی تو مجھے انگریزوں کے مفادات کا غلام بنا کر زیر زمین حکومت دشمن تنظیموں سے بآسانی نمٹا جا سکتا ہے۔ انٹیلیجنس کے کچھ مہم جو افراد کو جن میں چند انگریز خواتین بھی شامل تھی بلند پہاڑوں کی طرف بھیجا گیا، اور چندر موہن نے اپنی پر اسرار شیطانی قوتوں کو بروئے کار لا کر ان لوگوں کی رہنمائی کی، اور آخر کار یہ لوگ وادی سبز تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس وقت وادی سبز پر سیان کی حکمرانی تھی، اور یہ پہلی پارٹی ہندوستان واپس پہنچی تو اس کی رپورٹ کے نتیجے میں انگریز حکومت نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ دور دراز بلند پہاڑیوں کے درمیان وہ اپنی اسلحہ ساز فیکٹری قائم کر سکتے ہیں، اور مہذب دنیا ان اسلحہ ساز فیکٹریوں سے بے خبر رہتی، اور اس کے لیے پہاڑوں میں کسی ایسی ریاست کی حمایت و تعاون کی ضرورت تھی جو طاقتور بھی ہو اور اسے انگریز اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر سیان نے انہیں رفتہ رفتہ اپنے تعلقات بڑھا لیے، اور ان تعلقات میں خوبصورت انگریز عورتوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ انگریز ان پہاڑی بستیوں کی سیاست میں بھی داخل ہو گئے، اور اسی کے ساتھ وہ میری جستجو میں بھی رہے۔ اور پھر جب سیان کو میں نے شکست دے دی اور کچھ عرصے کے بعد کھجیرہ کی رہنمائی میں کلکچے پہنچی تو چندر موہن نے آخر کار میرا سراغ لگا لیا، اور اس کے بعد چندر موہن کی ایما پر مجھے نظر میں رکھا جانے لگا، اور چندر موہن نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن مجھے زیر دام لے آئے گا، اور میں قابو میں آ جاتی تو پھر سیان کو دوبارہ وادی سبز کا حکمران بنانا آسان ہو جاتا۔ اس کے لیے قبائل کو صرف یہ بتانا کافی ہوتا کہ میں سردار ہاشم کی بیٹی نہیں تھی، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہوتا، اس بات کو ثابت نہ کیا جا سکتا، تو مجھے زیر دام لانے کے بعد سیان کی بیوی بنا دیا جاتا، اور یوں بھی سیان ہی وادی سبز کا حکمران ٹھہرتا۔ ایک ایک کر کے سارے عقدے کھل گئے، اور میرے لیے یہ بات بہرحال قابل فخر تھی کہ میں جنرل بخت خان کی نسل سے ہوں، اور نیک رو مہمن کی پیش گوئی بھی درست ثابت ہوئی کہ چندر موہن کی تلاش میری شخصیت کا بھید کھول دے گی، اور میں انہی خیالوں میں گم تھی کہ شیطان صفت چندر موہن کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، اور اے نثار، میں نے انگریزوں سے بہت دولت کما لی، اور اب زیادہ کی مجھے ہوس نہیں، اور مابلہ کے ساتھ مارکا ارائی مجھے بہت مہنگی پڑی، اور یہاں تک کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا، اور آج تک میں اس لیے بستر پر پڑا ہوں، اور معلوم نہیں یہ زخم کیسے ہیں جو کسی طرح بڑھتے ہی نہیں، اور جان سے زیادہ دنیا میں اور کیا ہے، اور اپنے بھگوان سے میری یہی پرارتھنا تھی کہ کسی بھی طرح معاملہ میرے قبضے میں آ جائے، اور میں ایک بار اپنے دل کی حسرت نکال کر اسے نیچا دکھا کر موت کی نیند سلا دوں۔ سو بھگوان نے میری سن لی۔ اب میں اس انگریزوں کے مفادات کا غلام بن کر زندہ نہیں رکھوں گا، اور اگر میں نے ایسا کیا تو پھر میرے سینے کی آگ کیسے بجھے گی، اور انتقام کی آگ، اور جس میں تو خود جل کر ختم ہو جائے گا۔ اور میں کافی دیر کے بعد بلند آواز میں بولی، اور تیرا گہنا غلط نہیں ہے مابلہ، نثار نے میری تائید میں کہا، اور وہ تیرا عہد کو مابلہ کی حقیقت جاننے کے بعد سیان، اور تیرے پاس ثبوت کیا ہے ان باتوں کا، نثار نے بحث کی، اور کیا خبر یہ سب کچھ تو نے مابلہ کی ماضی کے بارے میں بتایا ہے جھوٹ ہو؟ سمجھ گیا میں اے سردار عاشر کے بیٹے کہ تو اپنے عہد سے پھر گیا، اور ٹھیک ہے تو پھر تیرا انجام بھی مابلہ سے مختلف نہیں ہوگا۔ این اسی لمحے مجھے اپنے گرد کھجیرہ کی مانوس و مخصوص خوشبو چکراتی محسوس ہوئی، اور اسی کے ساتھ کنویں میں دائیں جانب سرنگ کا دہانہ دکھائی دینے لگا۔ جا اے مابلہ، اب اسے شکار کر لے، اور نیک رو مہیمن کی سرگوشیاں مجھے سنائی دینے لگی، اور کھجیرہ تم دونوں کی رہنمائی کرے گی۔ اور مہیمن کا اشارہ یقیناً چندر موہن کی طرف تھا، اور میں کھجیرہ کی خوشبو کے پیچھے چل دی، اور نثار بھی میرے ساتھ تھا، اور مجھے اسے کچھ کہنا نہیں پڑا، اور اس نے بھی شاید سرگوشیاں سن لی تھیں۔ سرنگ سے نکل کر میں اس کمرے سے گزری جہاں گزشتہ شب نثار کو ایک خوبصورت داسی کے ساتھ دیکھا تھا، اور اس کمرے کے بعد دائیں جانب اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، اور میں ان سیڑھیوں پر چڑھ گئی، اور کھجیرہ کی خوشبو اسی طرف رہنمائی کر رہی تھی۔ میں اس کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی دیوار کے قریب ایک پلنگ پر چندر موہن آنکھیں بند کیے پڑا تھا، اور اس کے ہونٹ حرکت میں تھے، اور اس کے سینے سے لے کر نیچے تک جسم کا ایک چادر سے ڈھکا ہوا تھا، اور نثار نے میرے عقب میں کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔
आंखें खोल दे चंद्र मोहन, अब तेरा कोई जादू नहीं चलेगा। और मैंने ये अल्फाज पूरे यकीन के साथ अदा किए थे। चंद्र मोहन आंखें खोलकर मुझे वैश्य ददासी नजरों से देखने लगा और फिर बोला, तू मामला, तू और यहां तक कैसे पहुंच गई? और उसकी आवाज मुर्तज थी। मौत को कहीं पहुंचने से कौन रोक सकता है? और मैंने कदम आगे बढ़ाए। पलंग पर वो अय्यार बद करदार शख्स बेबसी के आलम में पड़ा था और जिसने मेरा जीना हराम कर दिया था। उसने कई बार मेरी इज्जत व आबरू पर हाथ डालना चाहा और मुझे कैद रखा और ऐसी अज़ियतें पहुंचाई कि मैं चीख चीख उठी। और वह हैरत अंगेज पुरअसरार शैतानी कुव्वतों का मालिक था, मगर अब हुक्म हो चुका था कि उसे शिकार करने का। और उस हुक्म का वाज़ेह मतलब यही था कि उसकी शैतानी कुव्वतें छीन ली गई हैं और अब वो एक माजूर व मजबूर आदमी था और उसे मारने के लिए मेरे वजूद में ख्वाबीदा किसी पुरअसरार कुव्वत की जरूरत नहीं थी। ठहर जा मामला। और मैंने पीछे से निसार की आवाज़ सुनी, और उसे मारने में जल्दी ना कर। आगे बढ़ते हुए मेरे कदम रुक गए और मैंने मुड़कर निसार की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। उसे यकीनन मालूम होगा कि सयान कहाँ है, निसार ने मुझसे कहा। और गुस्से और शिद्दत जज्बात में वाकई मुझे यह ख्याल नहीं रहा था कि चंद्र मोहन से सयान के बारे में मालूम किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर उसी की जुबान तू ही खुलवा। और मैं पीछे हट गई और अचानक कमरे में चंद्र मोहन का कहका गूंज उठा और मुझे यूं लगा जैसे कोई पागल शख्स बहुत जोर से हंस पड़ा हो। आखिर पढ़ ही गया ना चंद्र मोहन से काम। और जरा देर बाद वह बोला, और कम से कम तुम लोग मुझे इस वक्त तक तो नहीं मारोगे जब तक मैं जुबान नहीं खोल दूं। और ये उस शख्स की शिकस्त का गोया एतराफ़ था जो कुछ देर पहले तक हमें अपनी शैतानी कुव्वतों का तमाशा दिखा रहा था। तुझ शदीद गलतफहमी का शिकार है, मैं बोल उठी। और जिस तरह मैं तुझ तक पहुंच गई और तेरे सर पर मौत बनकर मंडला रही हूँ, उसी तरह सयान भी मुझसे नहीं बच सकेगा। मुमकिन ही नहीं कि जब तक मैं ना बताऊं। और इस तरह तू ख्वाह मुख्वाह अपनी अहमियत जता रहा है। निसार ने उसे मुखातब किया, तो ना मानो मेरी अहमियत। और वो एक ये यार था, हिंदुस्तान भर में तलाश करते फिर उसे, और सारे हिंदुस्तान में मुझे उसे तलाश करने की मुझे क्या ज़रूरत है। और मैं जानती हूँ कि वो भी बंगाल ही में है, और बंगाल में था कभी, अब नहीं। और चंद्र मोहन ने जल्दी से कहा, और मरते वक्त भी झूठ बोलने और फरेब देने से बाज नहीं आ रहा तू। और मैंने उसे घूर कर देखा, और वो इस शहर से ज़रूर फरार हुआ है, बंगाल से नहीं। तू मुझे गलत रास्ते पर नहीं डाल सकता। और चंद्र मोहन का चेहरा कुछ बुढ़ सा गया, मगर उसने शायद अपने हवास पर जल्दी काबू पा लिया। और फिर जब वो बोला तो उसकी आवाज में पहले जैसा जोश नहीं था। बंगाल भी बहुत बड़ा है, तू आखिर उसे कहां कहां तलाश करती फिरेगी? मुझसे सौदा कर ले, फायदे में रहेगी। और क्या सौदा करना चाहता है तू? और मेरी आवाज में तलखी घुल गई। अपनी जिंदगी का सौदा। और उसने मतवक्का रहम तलब नजरों से मेरी तरफ देखा, और वह यकीनन समझ चुका था कि उसकी कोई पुरअसरार शैतानी कुव्वत अब काम नहीं आ सकती। चंद्र मोहन की बात सुनकर मैंने तनिया अंदाज में हंसी और फिर बोली, अपनी मौत से पहले तुझ जैसे हजार बुजदल ऐसी ही बातें करता है, और तुझे सयान का पता भी बताना पड़ेगा और मरना भी पड़ेगा। मेरे इल्म में था कि पुलिस वाले जब किसी पर टार्चर करते हैं और वक्त कम होता है और मुजरिम या मुलजमान की जुबान खुलवाना होती है तो उसे फुटबॉल बना लेते हैं, और जुराइम पेशा लोग भी तशद्दुद के लिए यही हरबा आजमाते हैं। तो मैंने निसार को अपनी बात समझाई, और चंद्र मोहन भी मेरी बात सुन रहा था, और वह दोनों हाथ उठाकर गड़गड़ाया, नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा ना करो। कमीने, भगवान से तेरा क्या रिश्ता, और जो उसकी दुहाई दे रहा है, और तू तो मुजस्समे शैतान है। और मैंने कहा, और फिर निसार को इशारा किया, और घसीट ले इसे नीचे। निसार ने देर नहीं की, उसके दोनों पैरों पर घुटने के करीब पट्टियां बंधी हुई थी, और मैंने झुक कर वो पट्टियां भी फाड़ दी, और जख्म खुल गए। और इस दौरान वो खौफजदा होकर चीखता रहा, लेकिन मैं उस पर कैसे रहम करती। और मालूम नहीं वो कितने बेगुनाह इंसानों का कातिल था। उसने ना जाने कितने घर उजाड़े और कितनी जिंदगियां बर्बाद की थीं, और कितनी दोशीज़ाओं को बेआबरू किया था, और वह हरगिज़ रहम के काबिल नहीं था। उसकी टांग के एक जख्म पर पहली ठोकर मेरी ही पड़ी। मैंने और निसार ने उसे ठोकरों पर रख लिया, और ये पहला मौका था कि किसी पुरअसरार कुव्वत के बगैर मैं अपने एक दुश्मन से इंतकाम ले रही थी। और जगह जगह से उसकी जिस्म की खाल फट गई और जख्मों से खून बहने लगा, और उसका फूला हुआ चेहरा कुछ और फूल गया। अब तक उसके सर पर ठोकर मारने से हमने दानिस्ता ग्रेज किया था कि कहीं वो बेहोश ना हो जाए।
البتہ اس کی موٹی اور بڑی چوٹی کے بال پکڑ کر میں نے پوری قوت سے کھینچے، اور پہلے تو اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے اور جیسے اذیت برداشت کرنا چاہتا ہو یا زبان نہ کھولنے کا ارادہ ہو، اور پھر پٹتے پٹتے وہ چیخنے لگا۔ مجھے اس وقت تک اندازہ نہیں تھا کہ اس کی چیخو پکار کا کیا رد عمل ہوگا، اور ذرا دیر بعد ہی معلوم ہو گیا کہ وہ دانستہ زور زور سے چیخ رہا تھا۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ اس کمرے میں کوئی خفیہ دروازہ بھی ہوگا، اور جس دروازے سے ہم کمرے میں داخل ہوئے تھے نثار نے اسے اندر سے بند کر دیا تھا، اور خفیہ دروازے کا علم اس وقت ہوا جب 8-10 وحشی سادھو اپنے ہاتھ میں لوہے کے لمبے لمبے ترشول اور بھاری تلواریں بلند کیے دائیں جانب سے اچانک نمودار ہوئے، اور ان کی طرف نثار کی پشت تھی اور میرا رخ اسی طرف تھا، اور میں نے چیخ کر نثار کو اپنی جانب متوجہ کر لیا، اور نثار تیزی سے ان کی سمت پلٹا، اور ایک سادھو نثار سے زیادہ دور نہیں تھا۔ سادھو نے نثار کی پشت پر ترشول اتارنے کے لیے اسے سیدھا کر لیا تھا، اور وہ سادھو یقیناً چندر موہن کے محافظ رہے ہوں گے۔ نثار نے سادھو کے حملے سے بچنے کے لیے تھوڑا سا ہٹ کر جھکائی دی، اور اس کے ساتھ ہی جھپڑ کر ترشول چھین لیا۔ کاٹ دو ان دونوں کو، اور چندر موہن نے چیخ کر اپنے چیلوں کو حکم دیا، اور میں بھی اسی اسنا میں ایک سادھو کے ہاتھ سے تلوار چھین لینے میں کامیاب ہو چکی تھی، اور پھر یکے بعد دیگرے چیخیں بلند ہوتی رہیں، اور سادھوؤں کی تعداد کم ہوتی گئی، اور کسی کے سینے میں ترشول اترا اور کسی کی گردن الگ جا پڑی، اور کوئی اپنے جسم کے کسی حصے سے محروم ہو گیا۔ چندر موہن کا کمرہ میدان راز بن گیا، اور ہر طرف خون تھا اور لاشیں، اور جب آخری سادھو بھی اپنے سینے سے ابلتے ہوئے خون پر دونوں ہاتھ رکھے اوندا گر پڑا، تو میں نے چندر موہن کی گردن پر تلوار کی نوک رکھ دی، اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے ناچنے لگے۔ جواب دے کہ سیان کہاں ہے، اور میں نے تلوار کی نوک کا دباؤ ڈالا، ڈھاکا ڈھاکا، اور وہ چندر موہن کا جملہ پورا نہ ہو سکا، اور میں نے تلوار سے اس کی گردن چھید ڈالی، اور پھر اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ کمرہ کسی متصل کا نمونہ پیش کر رہا تھا، اور میں اور نثار اس کمرے سے نکل آئے، اور میرے ہاتھ میں ابھی تک خون آلود تلوار تھی، اور نثار نے بھی ترشول تھام رکھا تھا، اور ہماری دانست میں ابھی خطرہ نہیں ٹلا تھا، اور بہت احتیاط سے اور چوکنا انداز میں ہم آگے بڑھ رہے تھے، مگر یوں لگتا تھا جیسے اس جگہ ہم دونوں کے سوا کوئی اور نہ ہو، اور بعد میں یہی بات درست ثابت ہوئی۔ چندر موہن کی تمام داسیوں اور چیلے فرار ہو گئے تھے، شاید انہیں چندر موہن کے انجام کا پتہ چل گیا تھا۔ میرے جسم پر ناکافی لباس تھا، سو میں نے ایک کمرے میں گھس کر الماری کھول لی، اور وہ چندر موہن کی کسی داسی کا کمرہ تھا، اور میں نے الماری سے ایک ساڑی نکال کر باندھ لی اور پیروں میں سلیپر ڈال لیے، اور نثار کو بھی ایک دھوتی اور کرتا مل گیا۔ کھجیرہ کی خوشبو نے اس دائرے زمین ٹھکانے سے نکلنے میں ہماری رہنمائی کی، اور ہم باہر نکلے ہی تھے کہ زمین پیروں کے نیچے ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور میں نثار کا ہاتھ تھام کر بھاگی، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ عظیم ہمن کی کہنا کھجیرہ نے ساحر عظیم کے ٹھکانے کی طرح چندر موہن کے اس مضبوط قلعے کو بھی زمین میں دھنسا دیا تھا، اور اس وقت رات کے 10 بجنے والے تھے جب ہم اپنی کوٹھی پہنچے، اور جو کچھ گزرا تھا کسی بہانے خواب کی طرح محسوس ہوا۔ دوسرے روز صبح خلاف توقع ارشاد حسین مجھ سے ملنے آ گیا، اور وہ میک اپ میں تھا، اور اپنے حلیے سے وہ کوئی مذہبی قسم کا ہندو شخص معلوم ہو رہا تھا، اور ارشاد حسین سرفروش تنظیم سے میرے رابطے کا ذریعہ بنا تھا۔ اس نے میرے خیال کی تصدیق کر دی، اور پھر بتانے لگا کہ جس روز آپ نے کلکتے میں قدم رکھا اسی روز سے ہمارے آدمیوں کی نظر میں تھی، اور مقصد آپ سمجھ سکتی ہیں معاملہ، اور پرسوں شام اس سلسلے میں مجھے جو رپورٹ ملی تشویشناک تھی۔ پر اسرار طور پر آپ کالی گھاٹ سے غائب ہو گئی، اور پھر آپ کا سراغ نہیں ملا۔ آپ کی حفاظت بہرحال ہماری ذمہ داری تھی، اس لیے تب سے گزشتہ رات تک سارا شہن چھان مارا گیا، اور ہمیں شبہ یہ تھا کہ کہیں انٹیلیجنس والوں یا حکومت کی کسی اور ایجنسی کی تحویل میں نہیں ہیں، اور میری تشویش کا بڑا سبب یہ تھا کہ چند روز پہلے دہلی سے آپ کے سلسلے میں بنگال کے ڈائریکٹر انٹیلیجنس کو سخت احکام موصول ہوا، اور ان احکام کے مطابق سابق ڈائریکٹر انٹیلیجنس بنگال ڈسوزا کو قتل کرنے کے الزام میں آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر ارشاد حسین نے اعتراف کیا کہ وہ تنظیم کے کلکتہ شاخ کا سالار اعلیٰ تھا، ورنہ میرے بارے میں اتنا باخبر نہ ہوتا، اور نہ تنظیم کے دیگر معاملات سے اتنی آگاہی ہوتی، اور اس معاملے میں آپ کچھ زیادہ فکر مند معلوم نہیں ہوتی کہ آپ کی گرفتاری بھی ممکن ہے، اور فکر مند اس لیے نہیں ہوں کہ اب مجھے تمہارے ملک سے زیادہ عرصے نہیں رکنا،
और मेरा मुल्क, और वो चौंक उठा कि आपने ये फैसला अचानक कैसे कर लिया। हाँ, तुम्हारा मुल्क अरशाद हुसैन, और अब से तुम्हारा मुल्क कहना ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि अंग्रेज एक ना एक रोज अपनी हदों में सिमट दिए जाएंगे और फिर ये मुल्क तुम ही लोगों का होगा। और तुम्हें शायद ये सुनकर हैरत हो कि मेरे अजदाद का ताल्लुक भी उसी मुल्क से था और जनरल बख्त खान मेरे जद्दे अमजद थे। लेकिन मैंने अब वहीं लौट आने का फैसला किया है जहां पैदा हुई और परवान चढ़ी, और मैं किसी कदर जज्बाती हो गई। फिर तो आप हमारे ही कबीले से हैं और आप हमारे लिए मजीद काबिल इज्जत हो गई हैं, और काश आप हमारे साथ हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में हिस्सा ले सकती। मैं तुम्हें हिंदुस्तान के मुस्तकबिल से आगाह कर चुकी हूँ, और हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी पा जाएगा और अंग्रेज यहाँ से वापस चले जाएंगे। और मुझे नेक रूह अजीम मुहिम्मन की सरगोशियाँ इस सिलसिले में सुनाई दी थी, और इन्हीं की रोशनी में यह सब कुछ मैं कह रही थी। खुदा आपकी जुबान मुबारक करे, अरशाद हुसैन पुरजोश आवाज में कहने लगा। और सुनो, अंग्रेज हुकूमत मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी, और उसे यही करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती। और कभी कभी आदमी कुव्वत बर्दाश्त खो बैठता है और जंजलाहट में ऐसे अहकाम दे देता है जिस तरह अहकाम दिए जाते हैं और वापसी भी लिए जा सकते हैं। अरशाद हुसैन, तुम्हें याद है कि एक मर्तबा मैंने तुम्हारी तंजीम को बतौर नजराना एक रकम देना चाही थी, मगर हालात ने कुछ और ही सूरत इख्तियार कर ली और बेवजह मैं अपने इस नेक इरादे पर अमल नहीं कर सकी। लेकिन इस वक्त आपको यह बात क्यों याद आ गई? उसने हैरान होकर पूछा। बात यह है अरशाद कि आज या ज्यादा से ज्यादा कल तक मैं ढाका चली जाऊंगी, ठीक है ना? और फिर मेरी यहाँ वापसी भी जरूरी नहीं, और अगर ऐसा हुआ भी और मुझे यहाँ आना भी पड़ा तो आर्जी तौर पर कई ठिकाने हैं जहाँ मैं रह सकती हूँ। चांदनी के इलाके में राजा उस्ताद का घर और टालीगंज में शंकर दादा का अड्डा, और फिर मैं मटिया ब्रज में हूँ। ऐसी सूरत में इस कोठी की अब मुझे कोई जरूरत नहीं, और तुम चाहो तो अपनी तंजीम के लिए इसे इस्तेमाल करो, और नहीं तो फरोख्त करके रकम तंजीम के माली शोबा में लगा दो। और मैं कानूनी तौर पर यह कोठी माँ फर्नीचर तुम्हारे नाम कर देना चाहती हूँ, और बाकी मामला तुम निपटाते रहना। फिर मेरे इसरार पर इरशाद हुसैन को यह बात मानना ही पड़ी, और कोठी की डुप्लीकेट चाबी उसी वक्त मैंने अरशाद हुसैन के हवाले कर दी। और सरफरोश तंजीम ने मेरे साथ अब तक जो तावन किया था और मुझे जो इज्जत दी थी, ये उसका बदल तो नहीं, एतराफ जरूर था। और अरशाद हुसैन के साथ इस गर्ज से मुझे कचहरी जाना पड़ा, और दोपहर तक यह मामला निमट गया। उसी रोज टालीगंज जाकर मैंने शंकर दादा से भी मिला, और वापसी में रात का खाना राजा उस्ताद के घर खाया, और मैंने अगले रोज ढाका जाने का फैसला किया था। और मेरा ये क्या दुरुस्ती साबित हुआ था कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कलकत्ता से ढाका रवानगी में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, और फिर एक कागज नीचे से अंदर आ गया, और मैंने लपक कर वो कागज उठा लिया। बंगला जुबान में कागज पर ये अल्फाज लिखे थे, इसी फ्लोर के कमरा नंबर 310 में जो शख्स अमीन उल हक के नाम से ठहरा हुआ है, हुकूमत का पालतू कुत्ता है, और उसकी तरफ से चौकन्ना रहें। क्या है ये? और निसार भी मेरे करीब आ गया। शायद कोई खेल शुरू हो गया है, और मैंने उसे मासूल होने वाले पैगाम से आगाह किया, और यह पैगाम सरफरोश तंजीम के किसी रुकन ही की तरफ से मुतवक्का है, और उन लोगों ने पहली बार हमसे राब्ता कायम किया था। ढाका आए हमें यह दूसरा ही दिन था, और गुज़श्ता दिन हमने आराम करके गुजारा, और कलकत्ता से ढाके तक का सफर खासा तवील और थका देने वाला था। अभी सुबह के 9 ही बजे थे, और नाश्ता कमरे में भी मंगवाया जा सकता था, मगर मैंने नीचे डाइनिंग हॉल में नाश्ता करने के लिए इंसार से कहा, और गुज़श्ता रोज से हम कमरे में ही थे और खाना वगैरह कमरे में ही मंगवाते रहे। और अरशाद हुसैन ने जिस होटल का नाम लिया था, उसी की तीसरी मंजिल पर हमें एक डबल रूम मिल गया था। जब मैं निसार के साथ नीचे जाने के लिए जीने की तरफ बढ़ रही थी, तो गैर इरादी तौर पर कमरों के नंबरों पर निगाह डालती जा रही थी, और दाईं जन्म कमरा नंबर 310 के दरवाजे पर मुझे एक नौजवान लड़की नजर आई, और वो गालबन पहले ही दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। राहदारी में आगे बढ़ते बढ़ते मैंने दानिस्ता रुकी और निसार को मुखातब किया, मुकेश मेरा मैं हार वहीं संगार मेज पर रह गया है, और ले आऊं या? और मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया, और मेरा मकसद तो वहां रुकना था। छोड़ो भी, वहां से कौन ले जाएगा? निसार ने कहा, और उसी वक्त कमरा नंबर 310 का दरवाजा खुला, और मैं तकरीबन उछल पड़ी। दरवाजा खोलने वाले शख्स का चेहरा मेरे लिए अजनबी नहीं था, और ये वही था कलकत्ते में जिसकी जेब से मैंने इंटेलिजेंस के महकमे का कार्ड निकाला था।
चंद लम्हों को उसका चेहरा दरवाजे पर नजर आया और फिर गायब हो गया और नौजवान लड़की के अंदर दाखिल होते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया था। मालूम नहीं उसने मुझे और नसार को देखा भी था या नहीं, और मैंने उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही तेजी से मैं आगे बढ़ गई और फिर नसार ने भी ऐसा ही किया और यकीनन नसार भी उस शख्स को पहचान गया था। हम सयान की तलाश में ढाका आए थे और हमारे नजदीक एंटीजेंस के इस आदमी का मामला ज़मीनी था। किसी भी वक्त इससे निपटा जा सकता था और मुझे तवक्का ये थी कि ढाका पहुंचने के बाद अजीम मुहिमन की तरफ से दुश्मन की तलाश में मेरी रहनुमाई की जाएगी, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ था और मैंने चंद्रमोहन को कत्ल करने में जल्दी की थी और वो शायद ढाका में इस जगह की भी निशानदेही कर सकता था जहां मेरा दुश्मन क़याम पजीर था, और इस ज़मन में सिर्फ शहर का नाम जान लेना भी काफ़ी नहीं था। और इस बात का साथ मुझे ढाका आने के बाद हुआ, और वो भी इस वक्त जब मुहिमन की तरफ से रहनुमाई नहीं हुई। फिर उसी शाम मैं और नसार शाह बाग होटल से निकले तो पूरी तरह चौकन्ना थे और मैं अपने गिरदो बेचते पूरी तरह गाय थी, और होटल में एक इंटेलिजेंस वाले की मौजूदगी ने हमें खासी हद तक मोहतात रहने पर मजबूर कर दिया था। हम नवाबपुर रोड पहुंचे और फिर उससे मुतसिल आबादी में दाखिल हुए और मतवसत तबके के लोगों का इलाका मालूम होता था। मतलूबा मकान तलाश करने में हमें ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई, और उसकी वजह यह कि हमें जिस शख्स के यहाँ पहुंचना था उसे सभी जानते थे, और किसी शरीफ आदमी को कोई जाने या ना जाने इलाके के गुंडे बदमाशों को सब पहचानते हैं। मेरे इशारे पर नसार ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खुलने में देर नहीं लगी। गंजे सर वाला एक शख्स दरवाजे पर नजर आया और उसके चेहरे पर छदरी सी दाढ़ी थी, और उसने अपनी गोल गोल आंखें घुमाते हुए हमें सवालिया नजरों से देखा और फिर बंगला ज़बान में सवाल किया, किससे मिलना है? सावल है अंदर। और मैंने आगे बढ़कर बोली, क्या काम है? और सवाल के जवाब में उसने सवाल ही किया और उसकी गर्दन तनी हुई थी और वह हमें ऐसी नजरों से देखने लगा जैसे अभी झगड़ा शुरू कर देगा। कहना कि हम कलकत्ते से आए हैं और हमें शाह जी ने भेजा है, और मैंने नरम और धीमी आवाज में बताया, और गंजे की तनी हुई गर्दन एकदम ढीली पड़ गई और कहने लगा, आप लोग अंदर आ जाएं। और ये कहते हुए उसने हमें अंदर जाने के लिए रास्ता दे दिया। मैं बिला झिझक अंदर दाखिल हो गई और नसार ने भी मेरे साथ दिया और गंजा बोला, सावल तो इस वक्त कहीं गया हुआ है, मगर आप बैठे, मैं उसे बुलाकर लाता हूं। जरा ही देर के बाद एक सांवली सी लड़की मैली साड़ी बांधे कमरे में और हमें चाय के कप थमाकर चली गई, और खिलाफे तवक्का चाय बहुत अच्छी थी और हम चाय के आखिरी घूंट ले रहे थे कि एक दराज कद शख्स ने कमरे में कदम रखा और उसका रंग बिल्कुल स्याह था और चेहरे के नकूश बदले थे। उसने एक मोंडे पर बैठते हुए अपना तारफ कराया, मेरा नाम सावल है और आप लोगों को किसने भेजा और मुझे मालूम हो चुका है, हुक्म करें, हमें बूढ़ी गंगा के बेटों से मिलना है। मैंने अर्ज़े मुद्दा में देर नहीं लगाई, कब? आज और अभी, और इसलिए कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। और वो जैसे कुछ सोचने लगा और फिर सर हिलाकर बोला, ठीक है, लेकिन उनसे मालूम करना पड़ेगा पहले। तो कर लो मालूम, और उसमें 1 घंटा भर तो लग जाएगा, हम इंतजार कर लेंगे, और यहाँ बैठे बैठे आप लोग तंग आ जाएंगे तो इसकी एक और तरकीब है। और फिर वो उठकर खड़ा हुआ, और मैं अभी आता हूँ। कुछ ही देर में वो अपने एक और साथ आदमी को साथ लिए कमरे में आया और हमें उसके हमराह जाने को कहा। अगर बूढ़ी गंगा के बेटे आपसे उसी वक्त मिलने पर आमादा हो गए तो वही दरिया में कश्ती पर मुलाकात हो जाएगी, और दूसरी सूरत में अगर मेरे आदमियों का उनसे राब्ता ना हो सका तो फिर कल आप लोग यहाँ आ जाएं और मेरा आदमी आपको जहाँ कहीं छोड़ देंगे। मेरे लिए ये सब कुछ नया नहीं था, और हुकूमत वक़्त के खिलाफ काम करने वाली तंजीमें ऐसे ही तरीक़ेकार वादे करती हैं और कोई बाआसानी उन तक ना पहुँच सके। हाँ, नसार इस पर कुछ हैरान सा था, और खाने का सुर्खो सबज तहमद बांधे हुए और वह लंबा खद्दर का कुर्ता पहने सावल का आदमी हमें अपने साथ लिए घर से, और हमें उसका गोया ताक़ुब करना था। सड़क पर पहुंचकर उसने एक हाथ रक्षा रोका और उसमें बैठ गया। हम दूसरे रक्शे में उसके पीछे चलने लगे, और घर से निकलते हुए शख्स ने बता दिया था कि हमें बादाम तली घाट के लिए रक्षा करना है। रक्शे आगे पीछे चलते रहे, और फिर हम एक बाजार से गुजरे और जहां घुंघरों की छनक और तबलों की थाप थी। वो ढाका शहर का बाजार हुसन था, और बाद में मुझे उसका नाम भी मालूम हो गया। वो बाबू बाजार कहलाता था। बाजार के अकब में बूढ़ी गंगा के किनारे अकामती इलाका बादाम तली के घाट के नाम से मंसूब था। हमारे रहबर ने घाट के किनारे रक्षा रुकवाया और किराया अदा करके उतर गया, और हमने भी उसकी तकलीद में यही किया। और बूढ़ी गंगा के घाट पर कश्तियां मौजूद थीं, और सावल के भेजे हुए आदमी ने एक कश्ती वाले से
बात की और हम दूर खड़े तमाशा देखते रहे। और उस शख्स ने वहां से करीब आने का इशारा किया और जोर से बोला, आशन दादू। और उसके कहने पर हम कश्ती में बैठ गए और वह घाट पर खड़ा रहा। और मांझी ने कश्ती खेलना शुरू की और घाट पर खड़े शख्स ने रुख्सती के हाथ में लाया और पलट कर वापस चल दिया, गोया उसका काम खत्म हो चुका था। और कश्ती दरिया के पानी पर हचकोले खाते हुए आगे बढ़ने लगी। फिर एक और कश्ती हमारे करीब आ गई और दूसरी कश्ती के मलाह ने हमारे कश्ती वाले से कुछ कहा और दोनों कश्तियां पानी में रुक गईं। हमारे कश्ती वाले ने मुड़कर हमसे कहा कि अगर आप लोगों को बूढ़ी गंगा के बेटे से मिलना है तो दूसरी कश्ती में चले जाएं। और हम उठ खड़े हुए और फिर दूसरी कश्ती में पहुंच गए। और दूसरी कश्ती में हमारा इस्तकबाल करने वाला अजीब से हुलिये का एक शख्स था। और वह पतला दुबला पिस्ता कद शख्स हरे रंग का तहमद बांधे हुआ था और आंखों पर चश्मा था। दुबला पुतला नजर आने वाला गैर अहम सादा शख्स किसी गैर मुल्की अंग्रेज हुकूमत के लिए मुजस्मे दहशत होगा। और उसे देखकर कतई ये अंदाजा नहीं होता था कि बंगला जुबान के अलावा वो बड़ी रवां अंग्रेजी बोलता था। उम्र ज्यादा थी मगर जाहिर नहीं हो रही थी। और रहमान की गैर अहम शख्सियत ने बहरहाल मुझे मुतासर किया और खसूसन उसकी नरम गुफ्तारी और महज़ब अंदाज ने। गायबाना तौर पर मुझसे वाकिफ था और मुलाकात पहली मर्तबा हो रही थी। आपको हमसे मिलने के लिए खुद आने की क्या जरूरत थी? अपने किसी नायब या मतहत को भेज दिया होता। और मैंने तफसीली तारफ के बाद गुफ्तगू शुरू की। अव्वल तो ये कि आपकी हैसियत और मर्तबे के पेश नज़र खुद मुझी को मिलने आना चाहिए था। और दो मेरी भी आरजू थी कि शर्फ मुलाकात हासिल कर सकूं। मोहब्बत और इज्जत अफजाई है आपकी। और फिर मैं असल मौजूद गुफ्तगू पर आ गई। और मुझे अपने एक दुश्मन की तलाश है और जिसके मुतल्लक तस्दीक हो चुकी है कि वो इसी शहर में है। और मैं उसकी तलाश के सिलसिले में आपसे तावन चाहती हूँ। और वजह यह है कि मैं इस शहर में अजनबी हूँ। तावन किया, आपका कहना तो हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। और रहमान के लहजे से खलूस का इजहार हुआ। और आपका दुश्मन अगर इस शहर में है तो हम उसे पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लाएंगे। और मैंने मुख्तसरों से सयान के मतल्लक बता दिया और फिर सयान के मखसूस हुलिये से भी आगाह कर दिया। और मैंने ये भी कहा कि मुझे सिर्फ ये मालूम हो जाए कि वो कहाँ है तो फिर मैं उससे निमट लूंगी। उसके बाद रहमान से गुफ्तगू होने लगी और सयान कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, अगर वह सरकारी मेहमान है तो जल्द उसका सुराग मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर वह इस शहर के किसी मंदिर में छुपा हुआ है तो भी उसे तलाश किया जा सकता है। और यहाँ मंदिरों की तादाद ज़्यादा नहीं है और केवल हिंदुओं की आबादी कम है। और रहमानपुर एतमाद आवाज़ में बोला, उसका सिर्फ सुराग लगाना है, छेड़ना नहीं। और उसे अगर ज़रा भी शुबा हो गया तो वह यहाँ से फरार हो जाएगा। और मेरा लहजा ताकीदी सा था। आपने इसका जो हुलिया बयान किया है और मुमकिन है यहाँ आकर उसने वो हुलिया बदल लिया हो। रहमान ने मुमकिन खदशे का इजहार किया। उसे कभी ये जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बताया, किस लिए? रहमान ने वजाहत चाही। खुद को उसने कभी गैर महफूज ही नहीं समझा और अंग्रेज हुकूमत का मेहमान होने के सबब उसे बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहा। और इसके अलावा उसे देगर हफाजत भी हासिल रहे और शायद अब भी उसे हासिल हैं। और तहफ़्फ़ुज़ात की तफजील में जाना इस वक्त मुमकिन नहीं। और उसके बारे में सिर्फ इतना ही कह देना काफ़ी है कि वो हुकूमत का मेहमान ना भी होता तो उस पर हाथ डालना हंसी का खेल नहीं। और वो कुछ सिफली अलूम भी जानता है और पुर इसरार शैतानी कुव्वतों का मालिक है। और मैंने इसीलिए अभी ये कहा था कि उसे छेड़ा ना जाए। अगर ऐसा है किरण जी तो फिर वो आपके कब्जे में कैसे आ जाएगा? तमाम कुव्वतों से बुलंद एक और कुव्वत भी है और वही जो हर शय पर कादर है। और आप उसे क्यों भूल गए रहमान? वो जो हमेशा मजलूमों की दाद रसी करता और जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाता है। और उसके यहाँ देर तो मुमकिन है, अंधेर नहीं। और मैंने एक ऐसी बात कह दी कि रहमान इस ज़मन में फिर कुछ और न कह सका। और कुछ तवक्कुफ के बाद उसने कहा, कल रात को किसी वक्त मैं खुद आपके पास होटल में आऊँगा। और मेरे ख्याल में अगर यहाँ इसकी हैसियत सरकारी मेहमान की है तो ये सुराग लगाने के लिए एक दिन काफ़ी है। रहमान, आपको गालबन ये इत्तला भी मिल चुकी होगी कि मैं जिस फ्लोर पर ठहली हूँ उसी के कमरा नंबर 310 में एक काली भेड़ मौजूद है। और ऐसी सूरत में आपका होटल आना उस वक़्त तक उस भेड़ को ज़िबा किया जा चुका होगा। और रहमान पुरसकून आवाज़ में बोला, और ढाका की इंतज़ामिया के लिए एक लाश का तोहफा और सही। और ये खबर मेरे लिए चौंका देने वाली थी मगर मैंने उस पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। दरअसल मेरा तरीक़ेकार थोड़ा मुख्तलिफ है।
रहमान मजीद बोला, और मैं ज्यादा देर कोई रोग नहीं पालता और दुश्मन को संभलने या कुछ कर गुजरने की मोहलत देना मेरे नज़दीक नामुनासिब है। और ये तस्दीक होने के बाद किसी शख्स का तल्लुक दुश्मन से है और हमारे लिए खतरा बन सकता है तो हम उसे फौरी तौर पर रास्ते से हटा देते हैं। और रहमान से मुझे जो गुफ्तगू मकसूद थी मैं कर चुकी थी, सो इजाज़त चाही और फिर ये उकदा खुला कि मैं जिस कश्ती में बैठकर घाट से चली थी वो अभी उसी की थी, और वो कश्ती दरिया में कुछ फासले से हमारी कश्ती के पीछे पीछे चलती आ रही थी। और ये उकदा भी रहमान ही ने खोला और हम दोनों दोबारा उस कश्ती में बैठ गए और कश्ती ने हमें घाट पर उतार दिया और वहां से हम शाहबाग होटल पहुंच गए। और अब आइंदा रोज तक के लिए कोई काम नहीं था जब तक कि रहमान से मुलाकात ना हो जाती, सो हमने होटल ही की हदूद में रहना मुनासिब समझा। अगले रोज रात को रहमान 8 बजे हमसे मिलने आ गया और वो इस वक्त एक मगरब ददा शख्स मालूम हो रहा था और चेहरे पर मेकअप भी था। उसकी आमद से पहले दरवाजे के नीचे से एक पर्चा फेंका गया और पर्चे पर लिखा था, बूढ़ी गंगा का बेटा ठीक 8 बजे पहुंच जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ और दस्तक होते ही मैंने दरवाज़ा खोल दिया। आपका दुश्मन यहाँ सरकारी मेहमान नहीं है, इस बात की तस्दीक कर ली गई है। और रहमान ने बैठते ही बताया, फिर तो अब दूसरा रास्ता रह जाता है और वह यकीनन किसी मंदिर में होगा। और मैं पुरयकीन आवाज़ में बोली। और फिर मुझे एक ख्याल आया और मैंने रहमान से सवाल किया, यहाँ कोई ऐसा मंदिर है जिसमें बतौर खास दुर्गा देवी की पूजा हो जाती हो? और मुझे इस मामले में कुछ मालूम नहीं, लेकिन पता चलाना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं, रहमान ने जवाब दिया। हमारी तंजीम में कुछ हिंदू भी हैं और वो किसी ऐसे मंदिर से ज़रूर वाकिफ होंगे। और फिर कब तक मुझे इसके बारे में इल्म हो जाएगा? इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आपका हुक्म हो तो मैं 1 घंटे के अंदर अंदर एक ऐसे कारकुन को आपके पास भेज सकता हूँ, तो देर ना करें। और मैं जल्दी से बोली। रहमान चला गया और फिर ठीक 9 बजे दोबारा कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसका नाम मुझे राकेश बताया गया था और उसी के साथ हुलिया भी रहमान ने बता दिया था और आने वाला वही था। रहमान ने उसे बता दिया था कि मुझे क्या मालूम करना है और वह इसलिए वक्त ज़ाया किए बगैर बताने लगा। नवाबगंज के करीब भी गरीबों की एक छोटी सी एक आबादी 1000 बाग है और उसे आप इस शहर की एक नवाही बस्ती समझ लें। वहाँ आबादी के बाहर एक ऐसा कदीम मंदिर है जिसमें सिर्फ दुर्गा देवी की पूजा होती है और दूर दूर से वहाँ यात्री आते हैं। और जिन केले मंदिर के साथ ही एक पुरानी इमारत बनी है और उस इमारत का कुछ हिस्सा गिर भी गया था, उसे मखदूश करार दिया गया है। और फिर भी लोग नहीं मानते और खुले आसमान के नीचे पड़ने से बेहतर वो इमारत को समझते हैं। मैं तो वहाँ खैर एक ही बार गया हूँ, मगर लोग अक्सर वहाँ जाते रहते हैं। और मंदिर के ही हाथे में बड़े पुजारी के रहने का स्थान है और मंदिर की हालत भी अच्छी नहीं और नीम शिकस्ता सा है। और यात्री वहाँ जाते तो हैं, मगर पुजारी के बार बार कहने के बावजूद इतना चंदा नहीं देते कि मंदिर की मरम्मत कराई जा सके। उस मंदिर में कोई तय खाना भी है? मैंने दरियाफत किया। मुमकिन है कि हो और मुझे मालूम नहीं, राकेश ने जवाब दिया। तुम वहां तक हमें पहुंचा सकते हो? क्यों नहीं, आपको कब चलना है? अभी चलना मुमकिन है तुम्हारे लिए। राकेश फौरन आमादा हो गया और जाने क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा था कि सिमते सफ़र गलत नहीं और मुमकिन है कि ये मेरी खुशगुमानी हो। शाहबाग से हजारीबाग का फासला खासा था और हमें वहां तक पहुंचने के लिए से देर लग गई कि सवारी के बंदोबस्त जल्दी नहीं हो सका और जगह दूर थी और हमें वापस भी आना था और रात ज्यादा हो जाती, सो वापसी के लिए सवारी ना मिलती। मैंने इसीलिए राकेश की तजवीज़ मान ली और कार लेकर होटल आने में से देर हो गई और फिर हम कार में बैठकर ही हजाराबाग रवाना हुए। और कार खुद राकेश चला रहा था और नसार और मैं पीछे बैठे थे। मंदिर से कुछ पहले ही मैंने कार को रुकवा ली और राकेश से बोली, तुम यहीं रुको और हम दोनों मंदिर से लौट कर आते हैं और वापसी में अगर हमें देर भी हो जाए तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं और तुम यहीं ठहर कर हमारी वापसी का इंतजार करना। नसार के साथ मैं आगे बढ़ती मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गई और ऊपर चढ़ते हुए मैंने मंदिर का बंद दरवाजा देख लिया। जब सीढ़ियां चढ़कर मैं ऊपर पहुंची तो दाईं जानब बनी हुई कोठरियां खासे फासले पर दिखाई दी और मैंने उधर कदम बढ़ाने से पहले मंदिर पर एक नजर डाली और वह कदीम मंदिर वाकई शिकस्ता हालत में था। उन कोठरियों के बारे में राकेश मुझे बता ही चुका था कि वहां मंदिर के बड़े पुजारी और उसके 2 नायब और एक दासी का कयाम है और नसार ही के सामने ये सारी बातें मालूम हुई थीं। और मैं उधर बड़ी तो नसार ने इसलिए पूछा कि सयान के बारे में क्या तू बड़े पुजारी से मालूम करेगी?
اور پہلے میں خود خالی کوٹریوں کا جائزہ لوں گی اور وہاں تو بزدل نہیں چھپا ہوا، اور بعد میں پجاری کی کوٹری اور دوسری کوٹریاں دیکھوں گی جو آباد ہیں، اور پجاری سے یہاں موجود کسی تہہ خانے کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ہوٹل سے میں اس لیے چھوٹی سی ایک ٹارچ لے کر چلی تھی، اور یہ ضروری نہیں تھا کہ اندھیرے میں دیکھنے کی پر اسرار قوت بر وقت بیدار ہو جاتی۔ پھر ہم نے کوئی خالی کوٹری نہیں چھوڑی، اور جن کوٹریوں کے دروازے ٹوٹ گئے تھے اور دیواریں منہدم ہو گئی تھیں انہیں بھی ہم نے دیکھا، اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ میرے کان کھڑے ہو گئے، اور مجھے یوں لگا کہ کسی کوٹری کی زنجیر کھڑکی ہو، اور میں نثار کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے بڑھنے سے روک دیا اور خود بھی رک گئی اور ٹارچ بجھا دی۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک کوٹری کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور ایک سایہ باہر آیا۔ دروازے پر دوسرا سایہ دکھائی دیا، اور میں نے اندازہ لگایا کہ باہر آنے والی کوئی عورت تھی، اور دروازے پر کھڑا ہوا مرد، اور میں اور نثار اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے، اور عورت کے سائے کو میں نے برابر والی کوٹری کا دروازہ کھول کر اندر جاتے دیکھا، اور عین اسی لمحے سناٹا جیسے ایک کرخت آواز سے جاگ اٹھا، کون لوگ ہو تم؟ اسی اثناء میں دو کوٹریوں کے دروازے اور کھلے، اور باہر آنے والے میں سے ایک کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ کیا ہوا مہاراج، کیا ہوا؟ اور نواردوں میں سے ایک نے بلند آواز میں معلوم کیا، ارے دیکھتے نہیں، بھگوان کے مندر میں یہ سسرے رات کے سمے موج میلہ رچانے آ گئے ہیں۔ اور کرخت آواز والے نے جواب دیا، اور لالٹین کی روشنی میں اب وہ صاف نظر آ رہا تھا، اور اس کی داڑھی اور سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، اور مونچھیں بھی اتنی گھنی تھیں کہ ان میں دہانہ چھپ گیا تھا، اور بالوں میں سیاہی سفیدی زیادہ تھی۔ وہ سفید دھوتی باندھے ہوئے تھا، اور جسم کا اوپری حصہ اسی دھوتی کے ایک پلے سے ڈھک رکھا تھا، اور گلے میں جینو تھا، اور اس کا ہاتھ ہم دونوں کی طرف اٹھا ہوا تھا، اور واضح الفاظ میں اس نے ہم دونوں کو بد کرداری کا الزام لگا دیا تھا۔ نثار کو اس پر غصہ آ گیا، ابے عیار بوڑھے، تو ہم پر تہمت لگا رہا ہے، اور ابھی تیری کوٹری ہی سے رات کے وقت کون عورت نکل کر برابر والی کوٹری میں گئی تھی؟ بول۔ اور نثار بھی اپنے غصے کا اظہار بوڑھے کی زبان میں کر رہا تھا، مہاراج یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور کیا سادھنا اس سمے اور اتنی رات گئے آپ کے پاس تھی؟ اور وہ دھوتی بند بولا، اور جس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ میں سمجھ گئی سادھنا اس مندر کی داسی کا نام ہوگا، اور بقیہ دونوں افراد پجاری کے نائب ہوں گے، اور میں نثار کے ساتھ اب ان دونوں کے قریب پہنچ گئی۔ کیوں رے پریما، اور تو اس ملیچ لونڈے کی باتوں میں آ گیا، اور تجھے مندر میں درگا دیوی کے چرنوں میں رہ کر نہیں یا نکال باہر کروں؟ اور بوڑھے پجاری نے لالٹین والے کو دھونس دی، اور جسے اس نے پریما کہا تھا۔ بھول ہوگی مہاراج، क्षमा کر دیں۔ اور لالٹین والے نے فوراً معافی مانگ لی، اور بوڑھا پجاری اب ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ تم دونوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، اور دیوی کے مندر کو تم نے کیوں گندا کیا؟ اور میں نے نثار کی تیوریوں پر بل پڑتے دیکھ کر جلدی سے کہا، مہاراج اس سمے ہم مجبوری میں آپ کے دوارے تک آ گئے ہیں، اور یہ میرا پریمی ہے اور میں اس کی پریم کا، اور ہم نے اب تک کوئی پاپ نہیں کیا، اور میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ آئی ہوں، اور یہ دیوی کے سامنے میری مانگ میں سندور بھرنا چاہتا ہے، اور اگنی کے سامنے پھیرے ہم کل دن میں لیں گے، اور یہ میری مانگ بھر دے گا، اور میں اسے اپنا پتی سویکار کر لوں گی، اور یہ میری مانگ نہ بھر سکا تو ہم پکڑے گئے، تو پھر شاید اس جنم میں ہمارا ملن نہ ہو سکے، اور ہم یہی وچار کر کے ادھر آئے تھے۔ میں نے فوراً ایک کہانی گھڑ دی تھی، اور اس کا ایک بڑا سبب بوڑھے پجاری کو رام کرنا تھا۔ وہ تو خیر ٹھیک ہے، پر تیرا پریمی اچھا نہیں۔ اور بوڑھے پجاری نے منہ بنایا، اور پھر اس سمے مندر کے دوار کھولنے کی دکشا دینا بھی تیرے بس کا کام نہیں لگتا۔ جو بھی دکشا ہوگی ہم دے دیں گے مہاراج۔ اور میرا وار کار رہا، اور بوڑھا لالچ میں آ گیا، اور میں نے بوجہ اسے شیشے میں اتارا تھا، اور پھر بوڑھے کو مزید رام کرنے کی غرض سے میں نے ایک اور داؤ آزمایا، اور میرے کہنے پر نثار سے اس سے معذرت کر لی۔ اس سمے درگا دیوی کے سامنے مانگ بھروانے کی دکشا 50 روپے سے کم نہیں ہوگی۔ اور پجاری بھاؤ تاؤ پر آ گیا، منظور ہے مہاراج۔ میں نے فوراً حامی بھری، اور آپ کے سوا مندر میں کوئی اور نہیں ہوگا، ورنہ مجھے لجا آئے گی۔ نہیں ہوگا کوئی۔ اور پجاری نے یقین دلایا، اور پھر کہنے لگا، اور آدھی دکشا پہلے دے دو۔ اور میں نے اس کا مطالبہ پورا کر دیا، اور وہ اپنی کوٹری سے مندر کے دروازے پر پڑے ہوئے تالے کی چابی لینے چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ پجاری نے اپنے دونوں چیلوں کو ان کی کوٹری میں جانے کا حکم دے دیا تھا، اور ہم دونوں اب وہاں تنہا رہ گئے۔ اس قدر ہنگامے کے باوجود داسی سادھنا اپنی کوٹری سے نہیں نکلی، اور بھانڈا پھوٹنے کے فوراً بعد شاید اسے اپنے گنہگار چہرہ دکھانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد بوڑھا پجاری ہاتھ میں لالٹین لٹکائے ہمارے آگے آگے چل رہا تھا، اور اس کا رخ مندر ہی کی طرف تھا۔
मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने ताला खोला और फिर हमें अंदर आने को कहा, और अंदर दाखिल होते ही मैंने तेजी से पलटकर अंदर से मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। और पुजारी ऐसा करने पर चौंका और दरवाजा बंद करने की वजह पूछी। अभी बताती हूँ। और ये कहते मैंने लपक कर पुजारी के करीब पहुंच गई, और मैंने इसी दौरान में कमर से बंधा लंबा खंजर खींच लिया और मैं पूरी तैयारी से चली थी। मेरा इशारा मिलते ही नसार ने झपट कर बूढ़े को गिरफ्त में ले लिया, यूं कि वो हरकत न कर सके। नसार ने उसके हाथ पीछे की तरफ मोड़कर उसे कतई बेबस कर दिया और लालटेन बूढ़े के हाथ से गिर गई, और मैंने लालटेन को उठाकर एक तरफ रख दिया ताकि वह बुझ ना जाए। इस तरह जकड़ लिए जाने पर बूढ़ा पुजारी खौफजदा होकर चीखने लगा, और उसने यकीनन मेरे हाथ में खंजर भी देख लिया था। और वहां से कुछ ही दूर एक चबूतरे पर बड़ी सी मूर्ति रखी थी। ऐ बुढ़े! और मैंने पुजारी से करीब पहुंचकर उसे मुखातब किया, और मैंने एक ज्ञानी से यह सुना है कि दुर्गा देवी के सामने जिस शख्स को बलि चढ़ाया जाता है उसकी उम्र बलि चढ़ाने वाले को लग जाती है। और यानी मैं देवी के चरणों में तेरी बलि दे दूं तो तेरी बकिया उम्र मुझे मिल जाएगी। क्या ये बात सच है? और मेरा मकसद उसे खौफजदा करना था। नहीं, बूढ़ा चीखा, और ये किसी ने झूठ कहा है। इन पत्थरों में कुछ नहीं रखा और ये सब ढकोसला है। और एक मंदिर का पुजारी ऐसी बात कर रहा है जो मेरे लिए हैरान कुन थी। और मैंने सोचा कि शदीद खौफ के सबब वो अपने देवी देवताओं की तकजीब कर रहा है। मैंने उसकी आंखों के सामने खंजर की नोक घुमाई और सख्त लहजे में कहा, तू दुर्गा देवी के मंदिर में जान के खौफ से ऐसी बकवास कर रहा है और देवताओं को जुटला रहा है। मैं नास्तिक हूं। उसने एक और इंकशाफ किया, और फिर भी इस मंदिर का पुजारी बना बैठा है। पापी पेट के कारण कौन क्या नहीं करता। तो मैंने चोला बदल लिया तो क्या हुआ? और वो बोला, और उसके लहजे में अब खुद एतमादी झलकने लगी, और मुझे बलि चढ़ाकर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद मैंने मजीद वक्त जाया किए बगैर सयान के बारे में सवाल किया। हाँ, वो यही एक कोठरी में रहता था, और जब तक वो यहाँ रहा उसने मेरी दासी साधना को एक रात भी मेरे पास नहीं आने दिया। और जाने उसके पास क्या जादू था कि साधना भी उसी का दाम बनने लगी थी। परसों रात उसे क्या सूझी और बोला कि मैं जा रहा हूं, और फिर चला गया। और पुजारी के लहजे से साफ पता चल रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रहा। कहाँ गया है वो बताकर नहीं गया। और इस मर्तबा नसार बोल उठा। पुजारी ने इनकार में सर हिला दिया और फिर कहने लगा, और मैं तो उसके जाने से खुश हो गया, और मुझे बड़ा डर लगता था उससे, और जबरदस्ती यहाँ आकर रहने लगा था और मंदिर पर कब्जा कर लिया था। अपनी कोठरी से वो कभी रात के समय ही निकलता, और सिर्फ साधना को उसकी कोठरी में जाने की इजाजत थी। उसने कह रखा था कि अगर मैंने या मेरे चेलों ने किसी को भी उसके बारे में बताया कि तू यहाँ रहता है तो मार डालेगा। और उसे जादू आता था, और कई बार उसने हमें जादू दिखाया। और जब पुजारी ने ये बात कर रहा था तो मेरे दिल में अचानक ख्याल आया, और मैंने नसार को मुखातब किया, तू इसे संभाल कर रख, मैं अभी आती हूँ। और नसार से इकरार में सर हिला दिया तो मैं मंदिर का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई, और मुझे दासी साधना की कोठरी के दरवाजे तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और फिर दासी का नाम लेकर पुकारा, और मुझे यकीन था कि वह अभी सोई नहीं होगी। कौन है? और अंदर से दासी की डरी डरी सी आवाज आई, साधना, तुझे महाराज बुला रहे हैं, और मेरी मांग में संदूर भरा जाना है, और मैं महाराज को दक्षा भी दे चुकी हूँ, और महाराज को संदूर नहीं मिल रहा, इसलिए तुझे बुलाया है। दासी मेरी बातों में आ गई और कोठरी का दरवाजा खोल दिया। अंदर लालटेन जल रही थी। मैंने खंजर अपने पीछे छुपाया हुआ था, और जैसे ही दरवाजा खुला मैंने तेजी से अंदर घुसकर कुंडी लगा दी, और फिर दासी को मैंने संभलने का मौका नहीं दिया। दरमियानी उम्र के होने के बावजूद उसकी सांवली रंगत, मुतनासिब जिस्म और चेहरे के नकोश में बड़ी कशिश थी, और कद भी लंबा था। जरा भी आवाज निकाली तो तेरा जिस्म छीट डालूंगी। और मैंने खंजर की नोक उसके जिस्म पर रख दी, और तुझसे जो सवाल करूं उसका जवाब दे। और फिर कुछ ही देर में खौफ के ने उसे जुबान खोलने पर मजबूर कर दिया। और सयान परसों रात ही वहां से चला गया था, मगर साधना कल भी रात को उससे मिली थी। सयान यहां आकर उसे अपने नए ठिकाने पर ले गया था, जो उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था। अब अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर ले, मैं जा रही हूं, और तूने किसी से कुछ कहा या शोर मचाया तो फिर तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने धमकी दी और बाहर निकल आई, और एहतियातन बाहर आते ही मैंने कोठरी के दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी थी। अब साधना चाहती भी तो कोठरी से निकल नहीं पाती। पुजारी के दोनों चेलों को कोठरी की कुंडियों में मैंने बाहर लगा दी और लपकती हुई मंदिर तक पहुंच गई। उस बुढ़े को छेड़ दे, और मैंने नसार को मुखातब किया, और फिर बुढ़े से बोली, तुझे यहीं बंद रहना है, और सुबह तक, और कोई ना कोई पूजा करने सुबह इधर आया तो
تو باہر سے مندر کا دروازہ کھول دے گا، اور بوڑھے پجاری کی جان بچ جانے کی وجہ سے وہ اس پر آمادہ ہو گیا، اور میں اور نثار باہر آ گئے، اور مندر کا دروازہ بند کرنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی۔ ہوا کیا، کچھ بتا تو صحیح، اور نثار میرے ساتھ سینوں کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ سیان کا پتہ چل گیا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے، اور میں نے جواب دیا، اور پھر کار تک پہنچتے پہنچتے نثار کو میں نے حقیقت سے آگاہ کر دیا، اور یہ معلومات میں نے سادھنا سے حاصل کی تھیں، اور سیان اگر بد کردار اور عیاش نہ ہوتا تو شاید مجھے اس کا سراغ نہ ملتا۔ پرسوں رات شاید اس نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی، اور تب ہی مندر سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔ ہزاری باغ سے آگے نواب گنج کی آبادی تھی، اور شہر کی سمت پھر لال باغ تھا، اور اس آبادی کے باہر پرانے وقتوں کا ایک مشہور قلعہ تھا، اسے قلعہ لال باغ کہا جاتا تھا، اور قلعے ہی سے متصل ایک بڑا میدان تھا جس میں مغلیہ تاجدار جہانگیر کی بیٹی کا مقبرہ بنا ہوا تھا۔ یہی جہانگیر کی بنوائی ہوئی ایک سرنگ بھی تھی، اور قلعے کا بیشتر حصہ منہدم ہو چکا تھا۔ کھنڈرات سے کچھ فاصلے پر ایک مغل امیر شائستہ خان کی بنائی ہوئی مسجد بھی تھی، اور سیان اسی قلعے کے منہدم حصے میں سرنگ کے قریب چھپا ہوا تھا۔ سرنگ کے دوسرے دہانے کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ گزشتہ شب سادھنا کو وہ سرنگ کے اندر ہی لے گیا تھا۔ اس عیار نے وہاں بھی فرار کی راہ پہلے تلاش کر رکھی تھی۔ ہم کار تک پہنچے تو راکیش ہمارا منتظر تھا، اور میں نے اسے بتا دیا کہ اب کہاں چلنا ہے، اور کار اسٹارٹ ہو گئی۔ قلعے سے خاصے فاصلے پہ پہلے میں نے کار کو رکوا لیا اور نثار کے ساتھ اتر گئی، اور راکیش کو ایک بار پھر ہماری واپسی کا انتظار کرنا پڑا۔